Hello everyone, myself Rinki Sharma and today we are going to start a very interesting topic of class 10 biology, that is life process. Let's start the chapter with understanding the name life process. Now बच्चों, life means anything which is alive, जो भी जिंदा है, right? जैसे we human beings हम alive हैं, cat, dog, insects, all these are living things, all these have living characteristics, right? Process means functions. In order to maintain themselves alive, अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक ऑर्गेनिज्म जो फंक्शंस परफॉर्म करता है उन्हें हम प्रोसेस बोलते हैं, राइट? उनको हम उन बेसिक फंक्शंस को हम प्रोसेस बोलते हैं, ओके? बेसिकली बच्चे, इन ऑर्डर टू maintain our life, in order to sustain ourselves, in order to repair ourselves, हम कुछ functions perform करते हैं, उन्हीं को हम life process बोलते हैं, right? We can see the definition. The basic function performed by living organism to maintain their life on this earth are called life process, right? And these life processes are movement, respiration, sensitivity, growth, reproduction, excretion and nutrition. A very interesting mnemonics to learn all these functions is Mrs. Gren, where M stands for movement, R respiration, S sensitivity, G growth, R reproduction, excretion and nutrition. I hope this is clear to everyone. Now move ahead. Next is, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मल्टी सेलुलर ह्यूमन बींग्स ही सिर्फ ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे बच्चे, जो भी लिविंग है, एनीथिंग विच इज़ लिविंग, यूनिसेलुलर लिविंग है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिविंग है, तो वो सब लाइफ प्रोसेस के बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे. यूनिसेलुलर वी नो दैट दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली. तो यूनिसेलुलर के केस में बच्चे सिर्फ एक सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा. वही सेल न्यूट्रिशन भी करेगा, एक्सप्रेशन भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा. एवरी फंक्शन आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल ओनली. नेक्स्ट इज मल्टीसेलुलर. What is multicellular now? In case of multicellular, cells then makes the tissue, tissue makes the organ and then organ system. They are more complex, right? So in order to maintain this complex system, they perform functions, right? And these functions are your life process, right? So all the organism, either it is a very minute, microscopic or big organism like us, right? All will perform these life process to maintain their life, to sustain their life or to repair their life. I hope I am clear to everyone. Next is moving ahead. बच्चे इन दिस चैप्टर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना. हम लोगों को 4 बेसिक न्यूट्रिशंस हैं जो डिटेल में करनी है. बेसिक फंक्शंस हैं, 4 बेसिक फंक्शंस हैं जो हमें डिटेल में करना है. फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद what are nutrients. Basically nutrients means हम लोग सब खाना खाते हैं, आपको पता ही है. आप ब्रेकफास्ट करते हो, आप लंच करते हो, डिनर करते हो, इवन स्नैक्स भी लेते हैं, राइट? आप हर टाइम डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स लेते हो. कभी आप चपाती लेते हो, कभी राइस, कभी दाल, कभी वेजिटेबल्स, कभी फ्रूट्स. हम इतना वैरायटी क्यों लेते हैं बच्चे? बेसिकली हम सराउंडिंग से कुछ न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, हम कुछ सब्सटेंसेस ले रहे हैं. वो सब्सटेंसेस जो हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंस है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ऑल दीज आर योर न्यूट्रिएंट्स, ओके? एंड विटामिन एंड मिनरल्स, दे आर ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ अ nutrients, right? Carbohydrate, fat and protein, they are required by the body in large amount, so they are known as macronutrients. क्या बोलते हैं हम इन्हें? Macro. As macro means large, right? So they are required by the body in large quantity, where vitamin and minerals, they are known as micronutrient. Micro means the nutrients which are required by the body in very less amount, right? Carbohydrate, protein and fats, macronutrients. Carbohydrate, fat and proteins, they are macronutrients. Your vitamin and minerals, they are micronutrients, right? आप लोग चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, उनसे आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट. दाल देती है मम्मा, दाल लेते हैं आप. प्रोटीन, एग लेते हैं आप, राइट? मिल्क लेते हैं आप, उनसे आपको क्या मिलेगा बच्चे? प्रोटीन. वहीं पे जब हम ऑयल, बटर रिच डाइट लेते हैं, वी विल गेट द फैट, राइट?
विटामिन एंड मिनरल्स आपको कहाँ से मिलता है? विटामिन बेसिकली हमें मिलता है फ्रूट्स के थ्रू एंड ऑल्सो थ्रू नट्स, ड्राई फ्रूट्स जो आप लोग लेते हैं. फॉर मिनरल्स वी आर बेसिकली डिपेंड अपॉन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट? नाउ nutrient, what are nutrients? This is clear. Done. Move ahead. Taking up of these nutrients, जिस तरीके से हम इन nutrients को लेते हैं, intake करते हैं and utilize करते हैं, उस process को हम nutritions बोलते हैं, right? उस process को हम क्या बोलते हैं? उस process को हम nutrition बोलते हैं. Okay. Now, as we know, there are diversity of organism, right? बहुत diverse तरीके की living organism है. सो सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम नहीं हो सकता बच्चे. दैट्स वाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स एंड दीज टू टाइप्स आर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेयर ऑटो मीन्स नेम इज सजेस्टिंग बच्चे सेल्फ, राइट? ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन एंड वी कैन से मेड, राइट? जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, सेल्फ मेड, राइट? व्हाट आई सेड, auto means self and troph means made. These organisms are making their food themselves. ये खुद से अपना खाना बना रहे हैं. Heterotroph, hetero means other and troph means made. They are depend upon others for their food. वो दूसरे organism पे या किसी दूसरे plants पे depend है अपने food intake के लिए, right? बच्चे, your heterotrophs they are further saprotrophs, parasitic and holozoic. We will discuss heterotroph in detail later on. Right now, we will focus on autotrophic mode of nutrition. अभी हम focus करेंगे autotrophs क्या होते हैं. As we know, in case of autotrophic mode of nutrition, they are further of two types, right? ये further two types के होते हैं बच्चे. Autotroph, just go through the definition please. If an organism can nourish itself by making its own food using sunlight or chemical, such mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition. Now autotrophs, they are further of two types, photoautotrophs and chemoautotrophs. Now again, photo means light, autotroph means organism which are making their food themselves by their own, right? Chemo means chemical, autotroph means they are making food themselves. So if the organism making their food themselves by using light, this is called photoautotrophs. If an organism making its own food with the help of chemical, they are called chemoautotrophs. I hope I am clear. Good. Yes. Next is the overall. Now what is photosynthesis? इस टर्म को भी हमें देखना ही पड़ेगा. As I told you, photoautotrophs, they are using light for making their food. Photo means light, synthesis means बनाना. Light की presence में अपने food को बनाने को हम बोलते हैं photosynthesis. Done बच्चों? Right? Now move ahead. Now next we are going to discuss in detail about nutrition in plants. How plants take their nutrition, how plants utilize them. We are going to discuss in detail. Okay, let's start. The process by which plants make their food is called photosynthesis. Again I am saying the same thing बच्चे. Photo means light, synthesis means बनाना. जब light की presence में कोई food बनाता है तो उसे हम photosynthesis कहते हैं. Photosynthesis is an important process by which food is formed. Done. The plant make their food using sunlight, water. Very good. It's a very important point which nourish them, which provide nourishment to other organism and themselves. Yes. बच्चे जब आपकी मम्मा घर में कुकिंग करती हैं, दाल बनाती है, तो कुछ रॉ मटेरियल्स रखते हैं साइड में. फॉर एग्जांपल मम्मा दाल रखती हैं, टमाटर रखती हैं, टमाटो रखती हैं, इस तरीके से सारा अपना रॉ मटेरियल सेट करती है. सिमिलरली जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो उनको भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है. वो रॉ मटेरियल क्या है? वो रॉ मटेरियल है सनलाइट, वो रॉ मटेरियल है वाटर, वो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वो रॉ मटेरियल आपका एक और है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लोरोफिल. राइट, ये सारे रॉ मटेरियल हैं विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. राइट, as mentioned, chlorophyll present in the green plants and they absorb sunlight. क्या करते हैं? They will absorb sunlight.
राइट. ओके, नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस. जो प्रोसेस होता है बच्चे, इट्स जस्ट नॉट अ सिंपल इक्वेशन जो आप अभी तक समझते आ रहे हैं. आप अभी तक क्या पढ़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू ग्लूकोज. हम यही पढ़ते हैं, राइट? सिंपल इक्वेशन. ऐसा नहीं होता बच्चे. फोटोसिंथेसिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. बेसिकली 3 steps आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट आर द 3 steps. फर्स्ट स्टेप, read it carefully. Chlorophyll present in the green plant absorbs light energy. सबसे पहले जो इवेंट होगा दैट इज आपका जो क्लोरोफिल है, जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं, वो क्या करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. डन. नाउ द सेकेंड स्टेप. इन द सेकेंड स्टेप आपका जैसे ही एनर्जी गेन करेंगे आपके सेल्स, वो क्या होंगे? एक्साइट होंगे. एक्साइट होने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में? हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, मैम ये वाटर आया कहाँ से? ज़रा हम पीछे इमेज पे जाते हैं. यू कैन सी ये वाटर कहाँ से आ रहा है बच्चे? आपका रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है, आपका अंडरग्राउंड वाटर है, राइट? रूट एब्जॉर्ब करेंगे. वी नो दैट आपका एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं जाइलम टिश्यू. वो जाइलम टिश्यू इस वाटर को कंडक्ट करके पूरे प्लांट्स को प्रोवाइड करेगा, तो वो लीफ को भी प्रोवाइड करेगा, राइट? यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा है लीफ के थ्रू. लीफ के पास क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा, राइट? स्टोमेटा से आपका ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट विल मूव इनसाइड. थर्ड रिक्वायरमेंट, सनलाइट. सनलाइट कहाँ से आ रही है? अगेन फ्रॉम सन. कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? लीव्स आर एब्जॉर्बिंग, राइट? और लीव्स में भी पर्टिकुलरली कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? दैट इज क्लोरोफिल. सो आई होप इट इज क्लियर हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं और वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेंगे. लेट्स रिवाइज. रॉ मटेरियल रिक्वायर आर सनलाइट विच वी गेट फ्रॉम द सन. Second, carbon dioxide which we get from the air, and how plant is going to take it? Through leaves. Third requirement, water, right? From where we get the water? From underground, from soil we will get the water. And the fourth requirement, chlorophyll. Where is chlorophyll present? It is present in leaves. I hope it's clear. Now move. Yes. Again I am repeating the 3 steps of photosynthesis. First, they will absorb the light, get excited. Then what they will do? They will split the water molecule into hydrogen and oxygen. ये वही ऑक्सीजन है बच्चे जो आप लोग इस टाइम मैं इनहेल कर रही हूँ, आप भी इनहेल करते हो. दैट्स वाई आप लोगों को एडवाइस किया जाता है ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, सो दैट बहुत अच्छे से ऑक्सीजन रिलीज होगा और आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, राइट? तो वाटर स्प्लिट होगा, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा, राइट? ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? रिलीज हो जाएगा एनवायरनमेंट में. और आपका ये जो हाइड्रोजन है इसका फर्दर क्या रोल है? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आया था, याद ही होगा आपको, राइट? स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया था प्लांट में. इसके साथ आपका ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, रिडक्शन होगा और वो क्या बनाएगा? आपका सिंपल फॉर्म दैट इज ग्लूकोज. These are the important events of photosynthesis. First, absorption of light energy. Second, splitting of water molecule. And then third, reduction of carbon dioxide to carbohydrate. Done बच्चों? Yes. One more thing. The simplest form of carbohydrate जो प्लांट एकदम तुरंत बनाता है that is glucose. And जब उसे स्टोर करके रखता है that form is starch. Okay. Now next is, we already discussed the condition necessary for photosynthesis are sunlight, chlorophyll and carbon dioxide, right? Next is stomata. अभी मैंने बीच में ना आपको एक और बात बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है स्टोमेटा से. ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन रिलीज होकर एनवायरनमेंट में आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है? स्टोमेटा से. तो स्टोमेटा इज एक्चुअली द गेट, राइट? वो एक ऐसा गेट है जो किसी चीज को अंदर आना अलाउ कर रहा है, एंट्री अलाउ कर रहा है उसकी, और कभी एग्जिट कर रहा है, राइट? किसको अंदर आने दे रहा है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड को. एंड किसको जाने दे रहा है बाहर? ऑक्सीजन को. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इस गेट के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, कैसे है. लेट्स स्टडी.
Stomata, they are the pores on the leaves that help in the exchange of gases. As I told you, enter, exit, enter, exit. तो it is allowing कि आपका gaseous exchange जो होगा वो कहाँ से होगा? In pores के थ्रू. आपका लीफ प्रेजेंट होता है बच्चे, लीफ पे आपके इस तरीके से दे आर माइक्रोस्कोपिक पोर्स एंड दीज पोर्स आर स्टोमेटा. ये आपके अपर सरफेस पे भी लीफ पे प्रेजेंट रहेंगे एंड लोअर सरफेस पे भी, बट द नंबर ऑफ स्टोमेटा आर मोर ऑन लोअर सरफेस. डन बच्चे. नेक्स्ट इज, यस इट इज रिटर्न, दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज, ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाई गार्ड सेल. आप ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, आई थिंक यू कैन सी, ये देखिए, वन गार्ड सेल एंड दिस वन इज अनदर गार्ड सेल, राइट. दीज आर द गार्ड सेल्स विच कंट्रोल कि कब स्टोमेटा ओपन होगा, कब स्टोमेटा क्लोज होगा. आई एम रिपीटिंग, कब स्टोमेटा क्लोज होगा एंड कब स्टोमेटा ओपन होगा, राइट. इट कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर. द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन. वाटर बच्चों, ये वी कैन सी, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया हुआ है आपको, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एंड वाटर के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज पोटेशियम आयंस, राइट. सो दीज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. डन, राइट. जब भी बच्चे आपका वाटर और पोटेशियम आयंस इस गार्ड सेल में एंटर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्वेलअप हो जाएगा. जैसे ही ये स्वेलअप होगा ये ओपन हो जाएगा, राइट. आई एम रिपीटिंग, जब भी आपके वाटर एंड पोटेशियम आयन गार्ड सेल में इनसाइड मूव करेंगे इट विल स्वेलअप, राइट. एंड ये कैसा हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा. डन बच्चों. इन नेक्स्ट यू कैन सी, जैसे ही आपका वाटर मॉलिक्यूल, यू कैन सी द एरो, इट इज मूविंग आउटसाइड. आपके जैसे ही वाटर और पोटेशियम आयन आउटसाइड मूव करेंगे ये फ्लैसिड हो जाएगा एंड गार्ड सेल क्लोज हो जाएंगे, राइट. दैट्स हाउ वाटर एंड पोटेशियम आयन दे आर कंट्रोलिंग द मूव और द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. कब वो ओपन होगा, कब वो क्लोज होगा. आई होप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, यू शुड नो विच आयन इज इन्वॉल्व इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. द आंसर इज पोटेशियम आयन, right, and water. Whenever water and potassium ion move inside, it will swell up and stomata will open. Whenever they move outside, it will become flaccid and stomata will close. I hope it's clear. Done. Next is, as we know that, अगर मैं आपसे पूछती हूँ, what is the kitchen of the cell in case of plant? Your answer will be, ma'am, is leaf, right? आपका आंसर क्या होगा, leaf, क्योंकि लीफ में ही सब कुछ प्रेजेंट है. बट अगर मैं और इंटरनल बात करूँ, मैं पूछूँ विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल, द आंसर इज क्लोरोप्लास्ट. यस, हमने 9th में पढ़ा है बच्चे, इट इज द ऑर्गेनेल विच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली, राइट. ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस. क्योंकि जितना भी हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हमने क्या रीड किया, यस बताइए. फर्स्ट पॉइंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सेकेंड पॉइंट हमने रीड किया दैट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड थर्ड पॉइंट रिडक्शन. वो सब कहाँ पे होगा, वो सब होगा क्लोरोप्लास्ट पे. तो आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज अ क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल, राइट. इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल. तो आपको दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, राइट, दिस इज एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन. ओके. अब क्या होता है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट में ना आपको ये स्टैक्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके के कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टैक दिखाई दे रहे हैं, राइट. अगर मैं इसके एक कॉइन की बात करूं तो उसको हम बोलते हैं थैलोकॉइड्स. क्या बोलते हैं हम, थैलोकॉइड्स, राइट. इट इज रिटर्न हियर थैलोकॉइड, ओके. और अगर मैं इस पूरे स्टैक की बात करती हूँ, हम इस पूरे स्टैक को बोलते हैं ग्रेना, ओके. तो आपका जितना भी वाटर, आपका लाइट एब्जॉर्ब होना और वाटर का स्प्लिट होना, राइट, ये जो दो इवेंट है ये कहाँ पे होंगे, ग्रेना में होंगे, ओके. आपका लाइट का एब्जॉर्प्शन एंड वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, ये कहाँ पे होगा, आपका ग्रेना में होगा, थैलोकॉइड्स में होगा, राइट. इन दोनों इवेंट्स को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन. Now the third event, that is reduction of carbon dioxide.
वो कहाँ पे होता है बच्चे? वो होता है मैट्रिक्स में। ये जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इस मैट्रिक्स में होगा आपका रिडक्शन प्रोसेस एंड इसे हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, राइट। तो अभी एक और चीज हमें पता चली कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को हमने 2 टाइप्स बोला है, दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जो फर्स्ट 2 इवेंट्स है उन्हें हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं एंड द लास्ट वन, द थर्ड आपका इवेंट, उसे हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ओके बच्चों, सो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, आपका लाइट है, लाइट एब्जॉर्ब किया, आपके जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है वो थैलेकोइड्स में होगा, उन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करते ही एनर्जी गेन किया एंड वाटर मॉलिक्यूल को देन स्प्लिट किया ऑक्सीजन में एंड हाइड्रोजन में। वो हाइड्रोजन कहाँ पे गया? मैट्रिक्स में गया, उस किसके साथ रिएक्ट किया? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एंड उन्होंने क्या बनाया? शुगर। ये शुगर क्या है? आपका ग्लूकोज, राइट। जब भी ये प्लांट में स्टोर होगा, ये किस फॉर्म में स्टोर होगा? एज अ स्टार्च, राइट। एनी डाउट बच्चों? आई थिंक आई एम क्लियर, राइट। आई एम रिपीटिंग अगेन, हमने अभी क्या किया है, जस्ट हैव अ लुक व्हाट वी हैव डन। वी हैव स्टडीड अबाउट photosynthesis, events of photosynthesis, site of photosynthesis. If someone asks you what is the site of photosynthesis, answer should be chloroplast. It is a cell organelle. What are the 2 reaction of photosynthesis? Light reaction, dark reaction. What are the events of photosynthesis? Absorption of light, then splitting of water molecule and reduction of carbon dioxide. Okay everyone, thank you so much. In the next lecture we will discuss about nutrition in animal. Thank you so much.